الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم طلاق کے بارے میں ایک عملی نمونہ دیکھیں گے کہ کس حساب سے طلاق دی جائے۔ بہت سارے لوگ طلاق دینے میں غلطی کر جاتے ہیں اور غلطی کی وجہ سے پھر بیوی سے غلط کرواتے ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ جو راستہ دیا ہے نا وہ بہت ہی بیٹر اور بہت ہی بہتر ہے۔ آدمی اگر اس کو سمجھ لے اور اس کے حساب سے اگر چلے نا تو کوئی دشواری اور پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے اور عملی زندگی میں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حساب سے ہمیں اسلام نے بتلایا ہے۔ ہر لائن میں ہم اسلام کے طریقہ کو اپنا لینا تو اسلام نے کوئی ایسا راستہ نہیں دیا ہے کہ جس میں انسان کے لیے دقت اور پریشانی ہو۔ انسان خود غلطی کر لیتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد غلط کی طرف جاتا ہے اور پھر غلطی کرتا ہے، غلطی پہ غلطی کرتا ہے، جبکہ اسلام نے بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین راستہ دیا ہے۔ اس کو اگر آدمی سمجھ لینا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہاں یہ جاننا ہے کہ دیکھیے اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو آپس میں ملنے ملانے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ بیوی کو الگ کرنے کو ٹھان لے۔ جیسا کہ اسلام نے کہا ہے کہ مان لے کہ بیوی صحیح نہیں ہو رہی ہے، سنبھل نہیں رہی ہے تو اس کو سمجھائے، پہلے واضح و نصیحت کرے، اسی طرح سے بستر سے الگ کر دے، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر اس سے بھی نہ مانے تو ہلکا پھلکا مارے بھی۔ اگر یہ بھی نہ کام آئے تو مان لے ایک شوہر کی طرف سے آدمی آئے، ایک بیوی کی طرف سے، اور پھر دونوں آپس میں مل بیٹھ کر کے دونوں میں ملانے کی کوشش کرے۔ یہ سب طریقے اسلام نے بتلایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کس حساب سے آدمی کس حساب سے چلے گا۔ پھر بھی اگر نوبت آ جائے طلاق دینے کی تو اسلام نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے یا بیوی کے حالات سے شوہر پریشان ہو جائے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسلام نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مان لے کہ بیوی ہے، شوہر کے جو کریکٹر ہے یا شوہر سے وہ پریشان ہے، شوہر سے وہ مطمئن نہیں ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اسلام نے بیوی کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ خلا کروا سکتی ہے، خلا لے کر کے وہ اپنی زندگی الگ کر سکتی ہے۔ شوہر کو اختیار ہے طلاق دینے کا اگر اس طرح کے حالات آ جائے کہ مان لے کہ بیوی کے کریکٹر صحیح نہیں ہے یا جو بھی مسئلہ ہو، اگر نوبت آ جائے تب کی بات میں کرتا ہوں۔ ویسے ڈائریکٹ آدمی کو طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں رشتے ہیں، یہ مضبوط رشتے ہوتے ہیں اور دونوں کو توڑنا یہ بہت آسان ہے، آدمی بہت منٹوں سیکنڈ میں توڑ لیتا ہے نا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر کے آدمی کو طلاق کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے اور کس حساب سے آدمی طلاق دے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی جان لے کہ دیکھیے ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، یعنی کوئی عورت کسی مرد کی بیوی ہے تو اس عورت کی دو حالت ہو سکتی ہے، دو حالت۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ ابھی اس عورت کا نکاح ہوا ہے کسی مرد کے ساتھ اور اس مرد سے اس عورت نے ملا نہیں ہے یا اس کے شوہر نے اسے ہم بستری نہیں کی، دونوں کا خلوت صحیحہ نہیں ہوا ہے، یعنی نکاح ہوا ہے اور نکاح ہونے کے بعد کوئی مسئلہ ہو گیا کہ اب طلاق کی بات آ گئی۔ اب شوہر اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے اب اس کو طلاق دے رہا ہے۔ نکاح ہو چکا ہے، عقد ہو گیا ہے، لیکن دونوں ملے نہیں ہیں، دونوں تنہائی میں نہیں گئے ہیں، کمرہ میں نہیں گئے، اس سے پہلے کہ اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ تو یہاں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس عورت کے لیے عدت نہیں ہے، اس عورت کے لیے عدت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر بیوی کے پاس جانے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے یا تنہائی میں دونوں یا ایک کمرہ میں بند ہونے سے پہلے دونوں یعنی خلوت صحیحہ اگر ہو جائے تو پھر عدت ہے، لیکن اگر دونوں ملے نہیں ہیں، اس سے پہلے اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو اس عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے۔ یہ پہلی حالت ہے ایک عورت کے لیے کہ شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، لیکن شوہر سے وہ ملی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ شوہر طلاق دے گا فوراً وہ الگ ہو جائے گی، ایک طلاق سے وہ الگ ہو جائے گی۔ یہ عورت چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینہ 3 مہینہ انتظار کرے گی پھر وہ دوبارہ سے شادی کرے گی، ہے نا، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ طلاق دے گا وہ الگ ہو جائے گی، دونوں کا دخول نہیں ہوا، دونوں ابھی ملے نہیں ہیں۔ اور دوسری حالت ایک بیوی کی یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر ہم بستری کر چکا ہے، دونوں آپس میں مل چکے ہیں، خلوت صحیحہ ہو گیا ہے، تو
ये जो औरत है जिससे शौहर मिल चुके हैं, इसके कुछ हालात हैं, इस औरत के कुछ हालात हैं कि उसके हिसाब से आदमी चलेगा कि ये औरत या तो हमल से होगी जिसे शौहर मिल चुका है, या उसको हैज़ आ रहा होगा, यानी वो उम्र है कि जिस उम्र में औरत को हैज़ आता है तो हैज़ वाला उम्र है, या इसकी एक हालत ये है कि उस औरत का हैज़ आना बंद हो गया है, यानी इतनी उम्र हो गई है कि अब हैज़ से वो मायूस हो गई है, या हैज़ आने की उम्र ही नहीं हुई है अभी उसकी, या हैज़ आना शुरू नहीं हुआ। ये उस बीवी की बात है कि जिससे शौहर मिल चुका है, दोनों आपस में मिल चुके हैं, ये उस औरत की बात है, उस औरत की तलाक की बात हो रही है कि जिसका शौहर उस औरत से, अपनी बीवी से मिल चुका है। तो इसके 4 हालत हैं। एक तो कि वो औरत हमद से होगी, पेट में बच्चा होगा, या बच्चा नहीं है, हैज़ आ रहा है, या हैज़ आना बंद हो गया है, या हैज़ आना अभी शुरू नहीं हुआ है। और एक बात यहाँ हम ये भी बताते हैं कि देखिए, तलाक देने से पहले, यानी तलाक में जो तरीक़ा इख्तियार करना है वो कौन सा, जो कि जायज़ है, नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार नहीं करना है। यानी मान लें कि बीवी हालत हैज़ में है तो हैज़ में वो तलाक नहीं दे सकता, हैज़ में तलाक देना ये जायज़ नहीं है। इसी तरह से उस तोहर में, जिस तोहर में शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया है, तो उसमें भी तलाक देना ये जायज़ नहीं है। ये दोनों हालत है कि इन दोनों हालत में आदमी अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, हालत हैज़ में और उस पाकी में जिस पाकी में अपनी बीवी से वो मिल चुका है। तलाक कब देगा, या तो हालत हमल में, पेट में बच्चा है, वो तलाक दे सकता है, या उस तोहर में आदमी तलाक देगा जिस तोहर में अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं किया है, जमा नहीं किया है, उस तोहर में आदमी तलाक देगा। तो अगर एक औरत कि जिसको उसका शौहर तलाक देना चाहता है, वो औरत अपने शौहर से मिल चुकी है, तो इसके ये 4 हालत बताए हैं कि या तो वो हमल से होगी, या उसको हैज़ आ रहा होगा, या उस हैज़ आना बंद हो गया होगा, या हैज़ आना शुरू नहीं हुआ है। जिसको हैज़ आ रहा है उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न सलासत कुरू, कि मुतल्लक़ा औरतें वो 3 महीने अपने आप को रोके रखेंगी, यानी इंतज़ार करेगी। इसकी इद्दत 3 हैज़ है। सलासत कुरू से कुछ उलमा ने यहाँ तुहर मुराद लिया है, कुछ उलमा ने यहाँ हैज़ मुराद लिया है, हैज़ मुराद लिया है। हाँ, जिसके पेट में बच्चा है उसकी इद्दत वज़े हमल है, बच्चा जनने तक है। जैसे ही वो बच्चा जनेगी वो इद्दत से निकल जाएगी। मान ले कि शौहर अभी तलाक दे रहा है, अभी तलाक दे रहा है, 2 घंटे के बाद वो बच्चा जन देती है, अब वो इद्दत से ख़त्म हो गई, अब वो इद्दत से निकल गई, अब वो उसकी बीवी नहीं रह गई। तो जिसके पेट में बच्चा है उसकी इद्दत बच्चा जनने तक है। अभी मान ले कि अभी हमल की शुरुआत है, 1 महीना 2 महीना हुआ है, तो 6 महीना 7 महीना, या जब तक वो बच्चा नहीं जन लेती तब तक वो इद्दत में रहेगी, इद्दत में रहेगी। और इस इद्दत में वो दूसरे से शादी नहीं कर सकती और शौहर के यहाँ ही रहेगी, अगर पहली और दूसरी तलाक है तो। और जिसको हैज़ नहीं आ रहा है या हैज़ आना बंद हो गया है, इन दोनों की इद्दत 3 महीने है। वल्लाई यईस्न मिनल महीज़, कुरान में सूरह तलाक में अल्लाह ने बयान फरमाया कि इन दोनों की इद्दत, जिसको हैज़ नहीं आ रहा है या हैज़ आना बंद हो गया है, दोनों की इद्दत 3 महीने है, 3 महीने। ये 3 महीने की इद्दत है। एक तलाक देगा तो 3 महीने वो इद्दत में रहेगी। हम देखते हैं यहाँ किस हिसाब से, मिसाल के तौर पर कि हम यहाँ लिखते हैं तलाक, तलाक को हम देखते हैं यहाँ, ये तलाक है। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, अगर मान ले कि हामिल है वो, इसकी इद्दत बच्चा जनने तक है, यानी पहली तलाक है, दूसरी तलाक है, तो इसकी इद्दत क्या, हमल जनने तक है। इसमें रुजू कर सकता है, शौहर अपनी बीवी से रुजू कर सकता है बच्चा जनने से पहले पहले। जब वो बच्चा जनेगी तो वो इद्दत से निकल जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि एक औरत को हैज़ आ रहा है, हम उसी के हिसाब से 3 महीना के हिसाब से लेकर चलते हैं कि मान ले हैज़ के बाद कब तलाक देगा, वो उस तोहर में तलाक देगा कि जिस तोहर में मर्द अपनी बीवी से जमा नहीं किया है।
हैज आता है, हैज आने के बाद जो पाकी आती है उस पाकी में तलाक देगा। तो हम यहाँ खाना के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि मान लें कि हैज के बाद हम लिखते हैं, हैज के बाद हैज आया औरत को, शौहर अपनी बीवी को रखना नहीं चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो क्या करेगा वो, हैज आएगा औरत को। हैज आने के बाद अब यहाँ वो पाक होगी। हैज आया, हैज के बाद तो आप पाक होगी। वो हैज के जो टाइम है ना, टाइम खत्म होने के बाद, या हैज की जो मुद्दत है, मुद्दत खत्म होने के बाद अब तोहर आएगा, तो इसको तोहर कहा जाता है, तोहर, तोहर। उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं हैज। यहाँ शौहर तलाक दे रहा है, मान लें कि पहली तलाक हम यहाँ लिखते हैं, पहली तलाक, पहली तलाक दे रहा है। कब देगा, तोहर में। हैज के बाद तोहर आया, इस तोहर में जमा किए बगैर वो एक तलाक देगा, तलाक कहेगा, और तलाक बोल देगा, वो तलाक वाक़ई हो गई। या तलाक के अल्फाज के अलावा दूसरे जो अल्फाज हैं जो किनाया में आते हैं, जैसे कि जाओ, मैं तुमको नहीं रखूँगा, मैं छोड़ दिया, इस तरह के जो अल्फाज हैं अगर नियत में है तो वो भी तलाक हो जाएगी अगर नियत में है। तो यहाँ मान ले कि तोहर आया, तोहर के बाद अब हैज आया, ये पहला महीना है, ये पहला महीना है। इसमें शौहर अपनी बीवी से रुजू नहीं करता। ये मान लें कि पहला महीना हम लिखते हैं, पहला महीना है। उसके बाद पहला महीना में शौहर अपनी बीवी से रुजू नहीं करता है। रुजू नहीं किया, इसमें एक महीना गुजर गया, अब इसमें रुजू नहीं किया। रुजू का मतलब है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को वापस लाना चाहे, चूंकि ये पहली तलाक है, पहली तलाक के बाद इसकी इद्दत 3 हैज है। एक औरत को हैज आ रहा है तो उसकी इद्दत 3 हैज है। तो इस इद्दत में ये जो मुद्दत है 1 महीना, इसमें उसने रुजू नहीं किया, रुजू नहीं किया, यानी बीवी नहीं बनाया। और रुजू का क्या तरीका है, या तो बीवी से हम बिस्तरी कर ले, या ये कह दे कि तू मेरी बीवी है, तू मेरे पास रहे, है ना। ये सब तरीके हैं रुजू करने के। अब दूसरा महीना यहाँ स्टार्ट हो गया है, हैज है, हैज के बाद अब यहाँ तोहर आएगा, तोहर, फिर उसके बाद हैज, हैज आया, ये दूसरा महीना है, दूसरा महीना है। पहला महीना में रुजू नहीं किया, दूसरा महीना आ गया, दूसरा महीना में भी शौहर रुजू नहीं किया, रुजू नहीं किया, दूसरा महीना आ गया, दूसरा महीना में रुजू नहीं किया। अब यहां से मान ले अब तीसरे महीने में दाखिल हो रही है, ये तीसरे महीने में मान ले यहाँ तोहर पाकी, तोहर पाकी को कहा जाता है। उसके बाद हैज, ये हैज आया, ये हैज तक टाइम है शौहर के पास अभी। ये जो हैज, ये जो है ना, ये तीसरा हैज, तोहर में तलाक दिया है, ये हैज आया है, इस महीना में रुजू नहीं किया है, फिर दूसरा तोहर आया, फिर हैज आया, इसमें रुजू नहीं किया है, ये दूसरा महीना है। ये पहला महीना था, ये दूसरा महीना है, और ये तीसरा महीना है, तीसरा महीना है। इसमें शौहर इसमें भी रुजू नहीं करता है, इसमें भी बीवी को वापस नहीं लाता। ये तीसरा महीना, इसमें भी वो अपनी बीवी को वापस नहीं लाता है, रुजू नहीं किया, इसमें भी रुजू नहीं किया। तो अब जैसे ही यह हैज खत्म होगा, औरत अब ज़ौजियत से निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी, अब इसकी बीवी नहीं रहेगी, अब इसकी बीवी नहीं रहेगी। यानी अगर आदमी चाहे तो एक तलाक में ही औरत को हमेशा के लिए अलग कर सकता है, वहाँ दूसरी तलाक और तीसरी तलाक देने की नौबत ही नहीं आएगी। एक तलाक से ही औरत हमेशा के लिए शौहर से अलग हो जाएगी। अगर मान ले कि रखना नहीं है बीवी को, तो एक तलाक दे दे, छोड़ दे, वो इद्दत से जैसी निकलेगी, खत्म है मसला, वो उसकी बीवी नहीं रहेगी। तो ये 3 हैज है। हमल वाली की इद्दत बच्चा जनने तक है, जो भी टाइम है, 9 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी है, जिसको हैज आ रहा है उसकी इद्दत 3 हैज है। अब मान ले कि ये 3 हैज है, 3 हैज में उसने रुजू नहीं किया, तो अब उसकी वो बीवी नहीं रहेगी, अब निकल जाएगी, वो खत्म। अब ये औरत यहाँ चाहे तो किसी और दूसरे मर्द से वो शादी करना चाहे तो वो दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। हाँ, यहाँ क्या है कि एक तलाक दे करके अगर बीवी को शौहर
लौटाता नहीं है, तो यहाँ दोबारा अगर इद्दत से निकलने के बाद भी अगर उसको बीवी बनाना चाहे तो यहाँ चांस है कि दूसरा निकाह करेगा, यानी फिर से नया निकाह करेगा और नया महर, और फिर उसको बीवी बनाएगा। यहाँ वो शर्त नहीं है कि तीसरी तलाक देने के बाद औरत दूसरे मर्द से शादी करेगी और दूसरा मर्द अगर तलाक दे देता है तो फिर ये पहले के लिए हलाल होगी, तो यहाँ वो शर्त नहीं है। यहाँ एक तलाक देकर के अगर शौहर छोड़ दिया है, इद्दत में वापस नहीं लाया है, तो अब बीवी इद्दत से निकल गई है, तो दोबारा अगर इसको लाना चाहे तो नया निकाह नया महर के साथ बीवी बना सकता है। हाँ, एक तलाक इसने जो दे दी है ना, ये तलाक कभी भी ज़िंदगी में मानी जाएगी और इसका एतबार होगा। कभी भी ज़िंदगी में ये तलाक वाक़ई हो गई, कभी भी एक तलाक दे चुका है, इसका एतबार होगा। बीवी से रुजू कर लेता है तब भी, रुजू नहीं करता तब भी ये तलाक माना जाएगा। यहाँ अगर रुजू नहीं करता है तो अब बीवी निकल गई। यहाँ फ़ायदा क्या है कि मान ले 3 महीना आदमी के पास चांस है सोचने का। अब एक ही मजलिस में लोग कहते तलाक तलाक तलाक, अब कहते कि भाई हमने तो एक ही मरतबा गुस्सा में तलाक देते। भाई गुस्से ही में तो तलाक होता है ना, गुस्से में ही तलाक होता है। अब एक ही मरतबा में कहता है 3 तलाक 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 दे देता है और कहता है कि अब क्या करे, तो अब बीवी को कहता है कि हलाला करवाओ। भाई तुम हलाला करवाओ ना, बीवी को क्या हलाला करवाते हो? तुमने गलती की है ना, गलती तुम कर रहे हो और हरामकारी की तरह बीवी को भगा रहे हो, कहते हलाला कर रहे हैं हम। ये हलाला जो अभी राइज है लोगों में, ये जायज़ नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। एक ही शक्ल है, वो भी बात आएगी कि उसी हालत उसी हिसाब से अगर आदमी करता है तो ठीक है। तो मान ले कि पहली तलाक दे करके शौहर बीवी से इद्दत में रुजू नहीं किया, बीवी अब ज़ौजियत से निकल गई, उसकी बीवी नहीं रह गई। इसी में हम एक मिसाल देखते हैं कि मान ले कि शौहर एक तलाक देता है और इद्दत में रुजू कर लेता है, चाहे पहला महीना में रुजू करे, चाहे दूसरा महीना में रुजू करे, चाहे तीसरा महीना में रुजू करे। मान ले तीसरे महीने में आकर के यहाँ आकर के शौहर हैज ख़त्म होने से पहले पहले वो बीवी को वापस ले आता है, लौटा लेता है, तो अब इसकी बीवी रहेगी। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ ये भी जानना है कि आदमी पहली तलाक देता है, ये इसको तलाक़ रजी कहा जाता है, यानी इसके पास चांस है। अभी कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, अत-तलाक़ मर्रतान, यानी मर्द के पास 2 चांस है। यानी एक तलाक देता है तो इसके पास जो इद्दत है ना, इद्दत में वो वापस ला सकता है, इद्दत में वापस ला सकता है। लोग कहते हैं कि हर महीने एक तलाक, कहाँ से हर महीने एक तलाक? भाई एक तलाक दे दी है, इसकी इद्दत है, इस इद्दत में दूसरी तलाक है ही नहीं दूसरी तलाक। ये जो इद्दत है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ुहुन्ना लिइद्दतिहिन्न वहसुल इद्दत। ये इद्दत है, इद्दत में तलाक दो, ये इद्दत है। एक तलाक दे दिया है, इसकी इद्दत 3 महीने, इसमें अब दूसरी तलाक हो गई नहीं। तो एक आदमी कहता है कि हमने एक ही मजलिस में 3 तलाक दे दिया, ऐसे दे दिया, नहीं, एक तलाक होगी। और एक तलाक की जो इद्दत है, इस इद्दत में औरत क्या करेगी? अपने शौहर के यहाँ रहेगी। क्या करते हैं लोग कि तलाक दे करके अपनी बीवी को अलग कर देते हैं। नहीं, अगर पहली तलाक है, दूसरी तलाक है, तलाक़ रजई जिसको कहा जाता है, इस तलाक में शौहर के यहाँ बीवी रहेगी। अगर शौहर से अलग हो जाएगी तो फिर कैसे प्यार मोहब्बत होगा दोनों में, कैसे मिलने का इम्कान होगा, है? तो ये जो इद्दत है पहली तलाक के बाद 3 हैज़ या 3 महीने या बच्चा जन्मने तक शौहर के यहाँ रहेगी। शौहर अपनी इस्तिताअत के हिसाब से उसको खिलाएगा पिलाएगा। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वजदिकुम, की ताकत के हिसाब से अपनी बीवी को खिलाओ और अपने पास ठहराओ। यहाँ औरत बाहर नहीं जाएगी, शौहर के यहाँ रहेगी। और ये जो तलाक़ रजी है, ये शौहर की बीवी होती है अभी, और इस इद्दत में शौहर जब चाहे अपनी बीवी को वापस ला सकता है। औरत कहे कि नहीं मैं आपकी बीवी नहीं रहूँगी, मैं निकल जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो बीवी है। अगर बीवी को नहीं रहना होगा तो वो खुला लेगी, लेकिन जो इद्दत है, इद्दत में वो अभी बीवी है, जो तलाक़ रजी है। तो यहाँ जो तलाक देते हैं, मान ले पहली तलाक दिया है, 3 हैज़ या 3 महीने जो इद्दत है, इस इद्दत में शौहर के यहाँ रहेगी और इद्दत से निकलने के बाद वहाँ से हो जाएगी। इद्दत से जब निकल जाएगी, शौहर वापस नहीं करेगा, तब वो उसकी बीवी नहीं रहेगी, अब वहाँ से वो बाहर चली जाएगी। इसमें मान लेते हैं कि तीसरे हैज में आकर के शौहर बीवी को लौटा लेता है, तो अब इसकी बीवी रहेगी। और जैसा कि मैं जिक्र किया कि ये तलाक इसका एतबार होगा कभी भी, ये पहली तलाक हो गई है। अब देखते हैं कि दूसरी तलाक हैज के बाद
यही शक्ल है। हैज के बाद तोहर, फिर उसके बाद हैज। ये पहला महीना है। हैज आया, हैज आने के बाद अब शौहर मान ले कि पहले तलाक देने के बाद रुजू कर लिया है, रुजू करने के बाद अब दोनों मियाँ बीवी आपस में रहने लगे, फिर साल, 2 साल, महीना, 2 महीना के बाद इख्तिलाफ हो गया। अब नौबत आ गई दूसरी तलाक की, तो अब यहाँ शौहर तलाक देगा तो ये दूसरी तलाक देगा, ये दूसरी तलाक देगा, क्योंकि एक तलाक हो चुकी है और रुजू कर लिया है, उसने रुजू कर लिया है, तो अब दूसरी तलाक देगा। तो दूसरी तलाक देगा, कैसे देगा? ऐसे ही हालत हैज में, और उस तोहर में तलाक नहीं देगा जिसमें वो हमबिस्तरी कर चुका है। हैज आएगा, हैज होने आने के बाद बीवी पाक होगी, उसमें वो तलाक देगा, एक तलाक देगा। ये पहला महीना है। पहला महीना तोहर आया, उसके बाद हैज आया, शौहर इसमें रुजू नहीं किया है, या अगर चाहे रुजू करना तो रुजू कर सकता है, लेकिन ये भी तलाक अब वाक़ई हो गई। फिर आप दूसरे महीना में दाखिल हो रही है औरत, मान ले कि यहाँ तोहर हैज आया, और इसी तरह से यहाँ तीसरा महीना है, तोहर हैज। ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना है। इसमें भी यही शक्ल है कि इसमें भी 3 हैज है, दूसरी तलाक दे रहा है, 3 हैज है। पहला महीना हुआ, इसमें उसने रुजू नहीं किया शौहर, फिर दूसरा महीना आ गया, दूसरा महीना में भी शौहर अपनी बीवी से रुजू नहीं करता है, फिर तीसरे महीना में वो दाखिल होती है और इसमें भी वो रुजू नहीं करता है। अगर यहाँ रुजू नहीं करता है, जब वो इद्दत से बाहर निकल जाएगी तो फिर अब बीवी नहीं रहेगी, और ये दूसरी तलाक है, ज़हन में बात रहे, ये दूसरी तलाक है, ये दूसरी तलाक, ये दूसरी तलाक है, वो पहली तलाक थी और ये दूसरी तलाक है। हैज आया, हैज में वो रुजू नहीं करता तो फिर बीवी अब निकल जाएगी, चाहे तो दूसरे मर्द से वो शादी करे, या अगर इसी मर्द से अगर शादी करना चाहे तो बस नया निकाह, नया महर होगा, सब कुछ, और फिर इसको बीवी बना सकता है शौहर। ये दूसरी तलाक के बाद की बात है। हाँ, अगर दूसरी तलाक देने के बाद जो इद्दत है, जो टाइमिंग है, चाहे 3 महीने हो, जिसको हैज नहीं आ रहा है या हैज आना बंद हो गया या जिसके पेट में बच्चा है, तो इद्दत है, इद्दत में रुजू कर सकता है, यहाँ इद्दत में रुजू कर सकता है। मान ले कि इसको फिर मान ले दूसरे महीना में रुजू कर लेता है शौहर, अपनी बीवी को वापस ले आता है दूसरे महीना में, लेकिन ये तलाक वाक़ई हो गई, पहली तलाक हो गई, अब दूसरी तलाक, अब चांस खत्म, अब तलाक मर्रतान, अब चांस खत्म, अब रुजू नहीं कर सकता। अब अगर तलाक देगा तो रुजू कर लिया, अब दोनों मियाँ बीवी रहने लगे, दोनों साल, 2 साल, महीना, 2 या 5 साल जो भी चला, फिर दोनों में इख्तलाफ हुआ। अब शौहर फिर तीसरी तलाक देना चाहता है, तीसरी तलाक देना चाहता है, तो अब यहाँ आएगा वही शक्ल, हैज आया, हैज के बाद यहाँ क्या है, तोहर में ये तलाक देगा, तोहर में यहाँ तलाक देगा। अब चूंकि ये रजी तलाक नहीं है, इसलिए यहाँ 3 महीना या 3 हैज शौहर के यहाँ नहीं ठहरेगी, शौहर के यहाँ नहीं ठहरेगी। जैसे ही ये तलाक दे रहा है शौहर, तोहर में तलाक देगा, यहाँ तलाक देता है, ये तीसरी तलाक है, ये तीसरी तलाक, ये तीसरी तलाक है। अब तीसरी तलाक हो गई तो ख़त्म है मसला, अब उसकी बीवी नहीं रहेगी। जैसे ही ये तलाक देगा तो बीवी का खर्चा उर्चा भी इसके ऊपर नहीं है, अब बीवी अलग हो जाएगी। अब इसके लिए शौहर के लिए रुजू का कोई चांस है ही नहीं। हाँ, यहाँ अब एक शक्ल है इस बीवी को वापस आने का, एक ही शक्ल है। वो क्या है कि ये औरत अब दूसरे मर्द से शादी करेगी। किस नियत से शादी करेगी? उसी नियत से शादी करेगी जिस नियत से इसने पहले मर्द से शादी की थी कि हम इनके साथ रहेंगे, घर बसाएंगे और इनके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी नियत से ये दूसरे मर्द से शादी करेगी और उनके साथ वो ज़िंदगी गुजारेगी। अगर उन दोनों में नहीं बन पाया,
दूसरा शौहर अगर इस औरत को पहले शौहर में जैसे कि नहीं बन पाया है तो तलाक दे दिया है, दूसरा मर्द अगर अब तलाक दे देता है तो इद्दत से निकलने के बाद जो पहला शौहर था उस शौहर से वो निकाह कर सकती है दोबारा। इद्दत से निकलने के बाद दूसरा जो उसका शौहर बना है, दूसरा जो उसका शौहर हुआ, वो अगर तलाक दे देता है अपनी मर्जी से, इख्तिलाफ हुआ, कोई मसला हुआ जिसकी वजह से वो रखना नहीं चाहा, अब तलाक दे देता है, तो इद्दत से निकलने के बाद यहाँ अब ये औरत पहले मर्द से जो कि पहला शौहर था उससे वो निकाह कर सकती है। अच्छा, तीसरी तलाक जब शौहर देता है, तीसरी तलाक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तलाक दे और जाकर के दूसरी जगह निकाह कर ले, नहीं, यहाँ भी इद्दत है। कम से कम 3 महीने यहाँ वो इंतज़ार करेगी, या 3 है जाएगा या 3 महीने, या बच्चा है तो बच्चा जन्म तक, है ना, ये इद्दत है। ऐसा नहीं है कि ये अब तीसरी तलाक शौहर दे दिया तो अब बीवी जाकर के कहीं निकाह कर ले, नहीं, यहाँ भी इद्दत है, इद्दत है यहाँ। अब यहाँ शौहर के यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन जहाँ रहेगी वहाँ वो इद्दत गुजारेगी, 3 महीने वो कम से कम इद्दत गुजारेगी, फिर जाकर के वो दूसरी जगह शादी कर सकती है। तो ये देखिए इस्लाम ने कितना बेहतर तरीका है। आप मान लें एक आदमी तलाक देता है, जो इद्दत है, इस इद्दत में आदमी सोच सकता है कि हमारे पास बच्चे हैं, जो मेरी बीवी थी वो चली गई है, उसको जुदा कर दिया है, लाना चाहे तो पहली तलाक के बाद इद्दत से निकलने के बाद भी दोबारा निकाह करके ला सकता है। दूसरी तलाक के बाद भी अगर इद्दत में रुजू नहीं करता है फिर भी 3 महीना है, सोचने का चांस है ना, कि अगर बच्चे हैं, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लौटाना चाहे तो इद्दत में ही लौटा सकता है, इद्दत में ही वापस ला सकता है। लेकिन इद्दत से निकलने के बाद भी दूसरी तलाक से अगर इद्दत में निकल जाती है तो भी इसके पास चांस है कि नया निकाह नया महर के साथ वो उसको बीवी बना सकता है, बजाय इसके कि वो किसी और मर्द से शादी करे तब ये पहले से शादी करेगी, ऐसा नहीं। ये तीसरी तलाक होने के बाद की बात है कि जब तीसरी तलाक शौहर दे देगा तो अब हमेशा हमेशा के लिए अब बीवी इससे अलग हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इद्दत है। वो इद्दत गुजारने के बाद वो जहाँ चाहे किसी और मर्द से शादी करे, और दूसरा मर्द अपनी मर्ज़ी से अगर तलाक दे देता है, अपनी मर्ज़ी से तलाक देता है, तो फिर वो पहले से निकाह कर सकती है। ये खुलासा है जो तलाक का है, और इस हिसाब से आदमी तलाक दे तो आदमी के पास बहुत वक्त है सोचने के लिए, बहुत वक्त है, और आदमी को इद्दत के हिसाब से ही चलना चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। इस्लाम ने बहुत आसान और बहुत ही बेहतर रास्ता दिया है। सोचने का आदमी के पास लंबा वक्त है, 3 महीना है, कम से कम 3 महीना में आदमी सोच सकता है कि अगर बीवी को रखना है तो दोबारा ला सकता है, पहली तलाक के बाद, दूसरी तलाक के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।